Hello everyone, welcome back to your business studies class. Today we are going to, we had completed our chapter 4, business services, and day before yesterday we had done the objective or multiple questions also. Today we are going to discuss about the short answers questions, right? So I'll give you a brief on these. So the first question is define services and goods. So we have to give the answer कि what is called services and what is called goods. Then we will go to the page number 83. You have your answer on page number 83. Payal, did you get the answer? Yes, ma'am. So everybody has taken the answers. So you can check your answers here. So the answer for the services is at page number 80. Services are those we can get it from here. Services are those, why it's not working? Services are those separately identifiable, essentially and intangible activities that provides satisfaction to wants and are not necessarily linked to the sale or a product or another service. So what are services which we cannot touch? Intangible होती हैं और हमारी डेली नीड से रिलेटेड होती हैं. जब हम उनको किसी को प्रोवाइड कराते हैं तो दे कैन गेट ओनली द सेटिस्फैक्शन, दे कैन नॉट ब्रिंग समथिंग इन फिजिकली वो कुछ भी लेकर के नहीं जाते हैं, बट वो क्या लेकर के जाते हैं? एक्सपीरियंस और सेटिस्फैक्शन जो होता है वो अपने साथ में लेकर जाते हैं. देन इट इज कॉल्ड सर्विस. Is this visible? No, ma'am. I'm not getting it how it is going. Wait for a second. It is not expanding. मैंने करके देखा था बट हुआ नहीं मुझसे. थैंक यू. So right, then we are talking about goods. Then goods are also generally used to refer to commodities of items of all types except services involved in trade और commerce. तो goods जो हैं वो कैसे हैं? वो टेंजिबल हैं. आपकी जो सर्विसेज हैं वो इंटेंजिबल हैं. एंड गुड्स जो हैं उनको आप फिजिकली क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो. यू कैन यूज़.
आप आफ्टरवर्ड्स भी उनको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। इसमें दो लोग जो होते हैं वो एक साथ में इंटरेक्ट होते हैं। वन इज़ द जैसे शॉपकीपर हो गया और जिससे आप परचेज कर रहे हो वो हो गया, और सर्विस में क्या हो गया आपका, सर्विस प्रोवाइडर हो गया। लाइक सर्विस प्रोवाइडर में कौन आ गए आपके, जैसे मेडिकल में डॉक्टर्स आ गए या फिर आपके टीचर्स आ गए। सो यू पीपल आर अवेलिंग सर्विसेज एंड गेटिंग द सेटिस्फेक्शन ओनली, राइट? So did you get this, पायल? Yes, ma'am. आपको पहले मिल गए थे आंसर्स? Yes, ma'am. Okay, fine. So should I ask to you? Yes, ma'am. Okay. So the next question is, what is e-banking? What are the advantages of e-banking? So could you please give me the answer कि e-banking जो है वो क्या है और उसके benefits जो हैं वो किस तरीके के हैं? Yes, ma'am. So what page number is? Ma'am, 85. Page number 85. Very good. Yes, sound it for me. Ma'am, internet banking means any user with a PC and a browser can get connected to the bank's website to perform any of the virtual banking functions and avail of any of the bank service. Right. There is no human operator to respond to the needs of the customer. ओके फाइन। सो व्हाट डू यू मीन टू से कि ई बैंकिंग इज दैट जब आपको बैंक जो है वो आपको ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल करा रहा है। एम आई राइट? Yes, ma'am. Actually, I'm not getting the page number properly. It's 88, then 87, 86. So it is here, e-banking. Is this visible now? Yes, ma'am. ओके तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ई बैंकिंग जो है वो बेसिकली क्या है, इज़ अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स। वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू ये जो फैसिलिटीज़ है ई बैंकिंग की इंटरनेट के थ्रू आपको अवेलेबल कराई जाती है, जिसमें कि आप सारे ट्रांजेक्शन जो है वो इजीली अवेल कर सकते हो, राइट? सो व्हाट अबाउट द बेनिफिट्स? बेनिफिट्स आर ऑल्सो रिटन हियर एंड द सर्विसेज आर ऑल्सो रिटन हियर कि इसमें आपको कौन सी सर्विसेज मिल रही हैं। वो सर्विसेज हैं आपकी, यहाँ पर देख सकते हो, ऑटोमेटिक एटीएम की जो सर्विस है वो मिल रही है आपको, पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंचार्ज एंड क्रेडिट कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कैश एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफ़र, एनईएफटी मिल रहा है आपको, आरटीजीएस मिल रहा है, विच वी हैड ऑलरेडी कवर्ड। हमने अपनी क्लास में और हमारे पुराने लेक्चर्स में कवर कर लिया है। सो वी आर फाइंडिंग द आंसर्स हियर। तो यहाँ पर आपने देखा कि ई बैंकिंग जो है कि सिंपल टर्म्स में क्या कहलाती है, इट इज इन सिंपल टर्म्स इंटरनेट बैंकिंग मीन्स any user with a PC and a browser can get connected to the bank's website to perform any of the virtual banking, right, functions and avail of any of the bank services। बैंक के द्वारा जितनी भी सर्विसेज दी जाती हैं which are written over here, we can get it on our telephone, mobile phones and on our personal computer, right? So this is e-banking। आफ्टरवर्ड्स आपको ई बैंकिंग के बेनिफिट्स आ रहे हैं। तो ई बैंकिंग के बेनिफिट्स में आपने देख लिया था कि ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी है। सबसे पहली चीज़ जो है कि जो भी ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी है। सेकेंड थिंग ये कि 24/7 आपको अवेलेबल है। सम ऑफ द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल ऑन 24/7। जैसे एटीएम कार्ड है वो आप हमें किसी भी समय यूज़ कर सकते हो। एंड आफ्टरवर्ड्स इसमें जो कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। एंड द थिंग इज़ दैट कि आप किसी भी समय पे एट एनी प्लेस ऑन एनी टाइम यू कैन गेट दीज सर्विसेज। तो ये भी क्या है, इनकी बेनिफिट्स हैं। क्लियर? Yes, ma'am. उसके बाद में देखो आप फोर्थ पॉइंट में आपका आ रहा है कि जो आपका ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है, जो भी आपके ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स हैं वो भी आप क्या कर रहे हो, इजीली
अवेलेबल हैं आपको, आपके फ़ोन पर ही अवेलेबल हो जाते हैं आपके जो रिकॉर्ड्स हैं, और कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो दीज आर द बेनिफिट्स विच वी आर गेनिंग फ्रॉम द ई बैंकिंग। तो इफ़ दे आर आस्किंग यू कि आप अब बताइए कि आपको क्या बेनिफिट्स हैं ई बैंकिंग के, सो यू कैन राइट फ्रॉम हियर। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? The next question is, Write a note on various telecom services available for enhancing business. ओके, टू इन्हांसिंग बिजनेस, बिजनेस को इन्हांस करने के लिए आपके पास में ऐसी टेलीकम्युनिकेशन की आपकी कौन सी सर्विसेज हैं जो कि आपको बिजनेस में हेल्प कर रही हैं? तो टेलीकॉम सर्विसेज के बारे में आपको बताना है। डिड यू गेट द आंसर? Yes, ma'am. इट इज ऑन पेज नंबर Page number 100. 100 और 103। 103 होगा। मेरी बुक पुरानी ना, इस वजह से प्रॉब्लम होती है पेज ओके में। ओके ओके, राइट। मेरी बुक भी पुरानी ही है। ओके, वी आर लुकिंग फॉर टेलीकॉम सर्विस। is this. Now you can see here आपकी जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं, तो वी आर हैविंग ऑन पेज नंबर 99 टेलीकॉम सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ है, वर्ल्ड क्लास टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज द की ऑफ रैपिड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री का सोशल डेवलपमेंट जो हो रहा है या जो रैपिड ग्रोथ हो रही है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही है वो किसकी हेल्प से हो रही है? हमारी टेलीकॉम सर्विसेज के थ्रू हो रही है, राइट। अब इसमें आपकी जो टेलीकॉम सर्विसेज आ रही हैं वो कौन कौन सी आ रही हैं? यू कैन चेक हियर। सेलुलर मोबाइल सर्विसेज आ रही हैं, फिक्स लाइन सर्विसेज आ रही हैं, केबल सर्विसेज आ रही हैं, VSAT इज़ वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ठीक है। तो ये इट इज़ अ काइंड ऑफ सैटेलाइट, इट इज़ अ काइंड ऑफ सैटेलाइट जो कि आपको लैंडलाइन की तरह ही अपना नीचे पूरा वो बिछा करके और आपको अवेलेबल करा रहे हैं जितने भी टेलीकम्युनिकेशन है आपके घर पे। तो इनके थ्रू आप क्या कर, अपने मोबाइल पर आपको अवेलेबल करा रही है। इनके थ्रू आप देख सकते हो कि आप ऑनलाइन क्या कर रहे हो, न्यूज़पेपर जो है वो भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। आपने देखा होगा आपके पास में एक ऐप आती है जिसमें कि आपको सारे न्यूज़ जो हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं वो आपको आपके फ़ोन पर अवेलेबल हैं। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द VSAT सर्विसेज। उसके बाद में DTH सर्विसेज हैं जो कि डायरेक्ट टू होम सर्विसेज हैं। इसमें भी आपको ये क्या कर रहे हैं, आपको सैटेलाइट के थ्रू एक स्मॉल एंटीना जो है वो आपको अवेलेबल कराते हैं। द वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस इज द टाटा स्काई। टाटा स्काई का आपने देखा होगा, एक जो वो है आपको वो मिल जाती है, क्या बोलते हैं उसको, एक दे प्रोवाइड यू डिश प्रोवाइड करा देते हैं आपको, ठीक है ना। तो वो डिश प्रोवाइड होने से आप क्या करते हो, एंटीना आपको मिल जाता है, डिश एंटीना जो है वो आपको मिल जाता है, एंड इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। जो चीज़ें इंटरप्ट होती हैं वो इन सैटेलाइट्स के थ्रू आपको बहुत ईजीली अवेलेबल है, राइट। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? Explain briefly the principles of insurance with suitable examples. ओके, अब आपको क्या करना है, आपको इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स जो है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। सो ऑन व्हाट पेज यू कैन गेट द आंसर? Page number 95. Is this page number 95? 93 है, मैंने अभी आगे बढ़ा के बोला। Okay, right.
वी कैन गेट इट फ्रॉम हियर। अब देखिए यहाँ पर आपको जो इंश्योरेंस है, वी नो वेरी वेल कि इंश्योरेंस जो है वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो हमें प्रोवाइड कराता है, राइट। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड कराता है। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इट वर्क्स ऑन सम प्रिंसिपल्स। तो आपने देखा इसमें, कैन यू गिव मी द आंसर? And first, utmost good faith. एग्जैक्टली, अटमोस्ट गुड फेथ। तो आप ये देखो, सेकंड में देखते हैं हम, तो हियर वी कैन गेट द अटमोस्ट गुड फेथ। और अगर हम यहाँ पर आकर के देखते हैं तो इसमें आता है द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सर्टेन एलिमेंट्स लाइक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, free consent, capacity to enter into a contract, lawful consideration and lawful object must be present for the contract to be valid. तो it is an agreement, एक agreement जो है वो किया जाता है and it is very legal। उसके अकॉर्डिंग ही जितने भी आगे फर्दर आपके जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो किए जाते हैं इंश्योरेंस के अंदर। देन इट कम्स कि इट बिलोंग्स टू अटमोस्ट गुड फेथ। व्हाट डज इट मीन कि जब भी आपको इंश्योरेंस करा रहे हैं तो जो इंश्योरर है और जो इंश्योर्ड है, दोनों को ही क्या करना चाहिए, अपनी जितनी भी कोई अगर बात है, कोई भी ऐसे सीक्रेट्स हैं तो वो उनको हिडन नहीं रखने चाहिए। एक फेथ जो है वो दोनों को एक दूसरे में बना करके चलना चाहिए। अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो अगर हम देखते हैं कि कोई एक पर्सन है हु इज़ हैविंग प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उसने क्या किया, उसको पहले से ही पता है कि उसको 2-3 सीवियर डिजीजेस जो है वो है, और उसने अपने लिए एक इंश्योरेंस लेता है वो, राइट। अब वो इंश्योरेंस लेता है लेकिन ऑलरेडी वो किस में है, ऑलरेडी 2 या 3 ऐसी बीमारियों से है जिसमें कि उसकी लाइफ जो है वो खतरे में है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो उनको हिडन नहीं रखनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड जो इंश्योरर है उसको भी इस तरीके से कोई भी हिडन पॉलिसीज़ नहीं रखनी चाहिए। अपनी जो भी पॉलिसी है उसको क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए कि किस तरीके से आपको इसका रीएम्बर्समेंट मिलने वाला है, राइट। ऐसा नहीं हो कि बाद में उसको पता पड़े कि भाई मुझे तो कोई किसी भी तरीके का ये वाली तो डिजीज़ जो है वो इसमें मेरे को मिल ही नहीं रही है, मेरे को बेनिफिट हो ही नहीं रहा है इसका, ठीक है। और क्या हो सकता है इसका, और क्या है इनके वो, Insurable interest. इंश्योरेबल इंटरेस्ट। यू कैन सी हियर इट इज़ रिटन इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है वो किस तरीके से होगा कि जो भी इंश्योर्ड पर्सन है उसका उससे रिलेटेड उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई भी अगर प्रॉपर्टी है या किसी भी तरीके की उसके पास में लैंड है तो उसका इंटरेस्ट पूरा पूरा उसमें होना चाहिए जिस चीज़ को भी उसने इंश्योर कराया है। सपोज़ कोई भी पर्सन है, अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो सपोज़ कोई बिजनेस पर्सन है, अगर वो अपनी प्रॉपर्टी या अपनी किसी लैंड जो है उसका इंश्योरेंस कराता है, अपनी बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराता है और उसको डैमेज होता है तो उसको सीधे सीधे कोई मॉनेटरी नुकसान होना चाहिए जिसका इफ़ेक्ट उसके ऊपर आना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है वो इसमें होना चाहिए। देन Indemnity. हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी का मीनिंग क्या हो गया, इंडेमिनिटी का मीनिंग हो गया कि फिर से उसी कंडीशन में ला करके पहुंचाना। सपोज हमने किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस कराया, हमने अपने मकान का इंश्योरेंस, मकान का फायर इंश्योरेंस करवाया, या हमने अपनी गाड़ी का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाया, या हमने अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया, तो लाइफ इंश्योरेंस जो है वो इसमें कवर्ड नहीं है। तो हमें ये देखना है कि जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो किस पे है, इंडेमिनिटी के बेसिस पर है। यानी कि अगर हमें किसी भी तरीके का नुकसान होता है तो जो इंश्योरर है वो वापस से उस चीज़ को उसी कंडीशन में हमें अवेलेबल कराता है, राइट। अगर वो क्या करेगा, अगर वो पेमेंट करेगा, अगर हम उसका पेमेंट लेंगे उससे तो वापस से सपोज हमारी कार कोई डैमेज होती है तो अगर हमारी कार में हमने उसका 3 लाख रुपए का बीमा कराया, अगर हमारे पास में 1-1.5 लाख रुपए तक का अगर हमारा डैमेज होता है तो हमारा जो इंश्योरर है वो हमें क्या अवेलेबल कराएगा, वो 1.5 लाख रुपये जो है वो हमें अवेलेबल कराएगा, जिससे कि हमको क्या करेंगे, रिपेयर कराएंगे, और रिपेयर करने के बाद में वो फिर से उसी कंडीशन में आ जाएगी इंडेमिनिटी। इट इज़ कॉल्ड इंडेमिनिटी, राइट। Yes, ma'am. Then it comes
अगर इसमें एक Proximate cause. प्रॉक्सिमेट कॉज, ठीक है, तो प्रॉक्सिमेट कॉज क्या हो गया आपका? प्रॉक्सिमेट कॉज में क्या बोलोगे आप? हाँ मतलब जो जिस वजह से हमने इंश्योरेंस कराया है तो वो हम जब उसको कंपनसेशन लेते हैं तो वो कॉज जेन्युइन होना ही चाहिए, मतलब एग्जैक्टली जिसकी वजह एग्जैक्टली से जैसे हमने फायर इंश्योरेंस लिया है तो हमारा लॉस फायर से ही होना चाहिए। एग्जैक्टली लेकिन प्रॉक्सिमेट कॉज जो है वो ये है कि आप मतलब जो भी आपका नुकसान हुआ है, एग्जैक्ट जो भी आपका नुकसान हुआ है उसमें वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होना चाहिए। सपोज आपको जिस चीज़ से भी नुकसान हुआ है तो इट शुड बी रिटन ओवर देयर कि आपको इस तरीके का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इट मे बी अ कॉज बिहाइंड इट कि इंश्योर आपने जो भी चीज़ इंश्योर कराई है, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट कोई मकान कराया है तो उसके पीछे उसका एक प्रॉक्सिमेट कॉज जो है वो आपके पास में होना चाहिए। देन व्हाट इज नेक्स्ट? Subrogation. एंड व्हाट इज सब्रोगेशन? व्हाट डज इट मीन? जो इंश्योरर है उसको मतलब इंश्योर्ड की जगह पे रहकर मतलब हर लॉस को उसके भरना चाहिए। हर लॉस को भरना चाहिए मीन्स? मैम जो इंश्योर्ड का कुछ भी लॉस है तो वो इंश्योरर को उसे देना ही चाहिए, मतलब उसमें उसको कुछ भी हुआ है तो जैसे मतलब उसमें ओके राइट, नो वरीज। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सपोज मैंने अपनी गाड़ी है, मेरी कोई कार है, ठीक है, मैंने उसका 5 लाख का इंश्योरेंस जो है वो करा रखा है। तो मैंने 5 लाख का इंश्योरेंस करा रखा है और एनी हाउ क्या होता है कि वो डैमेज हो जाती है, या सपोज आई हैव अ कार विच इज़ स्टोलन, ठीक है, मेरे पास में एक कार है जिसका मैंने बीमा करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है, एंड आफ्टरवर्ड्स वो कार जो है वो मेरी क्या हो जाती है, चोरी हो जाती है। फाइन। तो मेरी कार जब चोरी हो गई तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया और मैंने पूरा का पूरा क्लेम उससे ले लिया, जितना मेरा नुकसान हुआ है, जो भी डिप्रिसिएशन या जो भी हो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे मेरा पूरा पैसा जो था क्लेम का वो मुझे दे दिया इंश्योरेंस कंपनी ने। एंड आफ्टर सम टाइम अगर वो कार जो है वो पुलिस को मिल जाती है तो क्या उस कार पर मेरा अधिकार होगा? क्या मैं उस कार को फिर से बेच करके या फिर मैं उस कार को यूज करने का राइट रखती हूँ? नो मैम। नो। देन इट इज कॉल्ड सब्रोगेशन, राइट ऑफ ओनरशिप, ठीक है। तो हमारी जो राइट ऑफ ओनरशिप है वो किसके पास में चला जाएगा? फिर वो इंश्योरर के पास में चला जाएगा। सपोज आई हैव टेकन ऑल माई क्लेम, मेरा जो भी सेटलमेंट होना था वो सेटलमेंट जब मैंने ले लिया है तो उस चीज़ पे, उस ऑब्जेक्ट पर मेरा अधिकार नहीं होगा। अब वो किसके हाथों में चली जाएगी? इंश्योरर के। वो इंश्योरर इंश्योरर। उसको फर्दर जो भी है वो जो करना चाहता है वो उसके साथ में कर सकता है, राइट। सो दिस इज ऑल। द नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में क्या देखोगे आप? हम जैसे अलग अलग कंपनी से अगर किसी ने इंश्योरेंस ले रखा है तो एग्जैक्टली सब उसे देंगे, लॉस का पैसा सब भरेंगे। बिल्कुल। लेकिन सब भरेंगे का मीनिंग क्या हो गया कि अगर जैसे मैंने दो कंपनी से ले रखा है और अगर मुझे नुकसान जो है वो 2 लाख रुपए का होता है तो क्या 2-2 लाख रुपए दोनों कंपनीज मुझे देंगी उस एक असेट के ऊपर या उस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर या मेरा जो इंश्योर्ड वो है, क्या उसके ऊपर दोनों कंपनीज मुझे उतना ही पैसा देंगे, 2-2 लाख रुपए? तो मैम दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, जैसे मतलब हाफ हाफ एग्जैक्टली परसेंट या जितना उनका रेशो बनेगा उस हिसाब से। एग्जैक्टली कंट्रीब्यूशन में आपके क्या आ जाएगा कि अगर मैंने कोई भी इंश्योरेंस अगर मैंने दो कंपनी से ले रखा है, ठीक है, अगर मैंने किसी भी दो कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है और मुझे नुकसान होता है, जैसे सपोज मैंने 3 लाख का मैंने इंश्योरेंस ले रखा है और मुझे नुकसान जो है वो मुझे 50,000 का या 1 लाख का होता है, तो अगर मैं 1 लाख रुपए जब मैं क्लेम करने के लिए जाऊंगी तो अगर मेरे पास में कंपनी ए और कंपनी बी है तो मैं दोनों से 2-2 लाख रुपए जो है वो नहीं ले सकती हूँ, राइट। मेरे को इंडिविजुअली मतलब ये अमाउंट जो है वो ये दोनों ही कंपनीज जो है वो मिला करके पे करेंगी। तो अगर इन इस तरीके का कुछ है कि भाई किस रेशो में करना है, देन एंड देयर इट वुड बी डिवाइडेड, और अदरवाइज हाफ हाफ पेमेंट जो है वो दोनों साइड से करके मेरा जो वो है कंजम्पशन मतलब मेरा जो बनता है पैसा
अगर मुझे 2 लाख रुपए का क्लेम मेरा बनता है तो वो 2 लाख रुपए जो है वो दोनों कंपनियों के द्वारा मेरे को दे दिया जाएगा। सो राइट, एक और लास्ट और है, एक और है इसका मिटिगेशन। मिटिगेशन। देन व्हाट अबाउट मिटिगेशन? मैम जैसे अगर उसे लॉस हो रहा है किसी को, इंश्योर्ड को, तो मतलब जैसे उस लॉस को कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए इंश्योर्ड को। एग्जैक्टली कि जो अगर आपने जो इंश्योर्ड पर्सन है और उसका जो भी ऑब्जेक्ट है या जिस भी चीज़ पर उसने इंश्योरेंस ले रखा है, तो उसको ये नहीं सोचना है कि मेरे को ऑलरेडी इसका इंश्योरेंस है तो आई एम नॉट वरिड अबाउट इट। आप अगर किसी भी चीज़ को देख रहे हो, अगर आप उसको बचा सकते हो, अगर आप उस नुकसान को कम कर सकते हो, इन दैट केस आपको वो मिटिगेशन एफर्ट्स जो हैं वो लेने ही चाहिए। ठीक है। और अगर किसी भी तरह से, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपका बिना सोचे समझे, आपने देखा होगा कि जब भी कोई इंश्योरेंस हम क्लेम करते हैं तो पहले उसका पूरा ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसकी जितनी भी इंक्वायरी है वो निकाली जाती है, राइट, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उसके बाद में ही आपको ये बोला जाता है। आपने तो मांग लिया, आपकी कोई चीज़ खराब हुई, आपने बोल दिया भाई मेरा 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, पर जेन्युइनली वो 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बेसिस पे ये अमाउंट जो है वो डिसाइड किया जाता है। तो देयर शुड बी मिटिगेशन कि आपको क्या करना है, जो इंश्योरर है उसको अपनी चाहे लाइफ है उसे बचाने के लिए भी, या फिर अगर उसका कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए भी उसको पूरे मिटिगेशन एफर्ट्स जो है वो लेने चाहिए, राइट। So this question is also done. The last question is question 5 is एक्सप्लेन वेयर हाउसिंग एंड इट्स फंक्शंस। exactly। तो वेयर हाउसिंग का कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 103 है, तो आई थिंक आपका 106 होगा। 106 और 108 है ना। यस मैम। 5 it is function of warehousing, right? So they are asking what is warehousing also? यस मैम, एंड फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग। Okay, तो यहाँ पर आपने देखा warehousing आ गया आपका ये। तो in a simple language what it is called, warehousing is generally in a common language it is called storage, है ना। तो storage is called warehousing, but when we go to the definition हम क्या देखते हैं कि जो वेयर हाउस होते हैं वो जनरली क्या है आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एग्जैक्टली यहाँ पर देख सकते हो आप, वेयर हाउस हैव ceased to be mere storage service providers and have really become logistical service providers in a cost efficient manner, right? That is making availability of right quantity at the right place in the right time। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हो कि वेयर हाउसिंग जो है उसको बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में हम बोल देते हैं, जबकि स्टोरेज अवेलेबल हो आपको। तो अब अगर देखते हैं तो ये वेयर हाउसिंग जो है वो बहुत ही साइंटिफिक मेथड पे है, जिसमें कि आपको मतलब आपको सही समय पे सही तरीके से सही क्वांटिटी में आपकी जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं वो आपको अवेलेबल कराई जाती हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन कि उसके अपने खुद के वेयर हाउसेस हों। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी बिजनेस पर्सन है, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहा है या फिर एक कॉमन बिजनेस कर रहा है, तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वेयर हाउस अवेलेबल, जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, स्टोरेज जो है वो कर सकते हो। देन व्हाट इज नेक्स्ट? फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग। हाँ, फंक्शंस ऑफ वेयर फंक्शंस ऑफ हाउस। वेयर हाउसिंग। फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग यहाँ पर भी आपको दिखा दिया हुआ है। जो फंक्शंस हैं इसके आपको वो भी दिए हुए हैं कि कंसोलिडेशन है इसमें, कि ये क्या कर रहा है, ये जितने भी तीनों लोग हैं इन सभी का कंसोलिडेट करके, यानी कि एक ही जगह पे इकट्ठा करके 3 लोगों या 4 लोगों को भी क्या करा जा रहा है, वेयर हाउसिंग जो है वो अवेलेबल करवाई जा रही है। फिर यहाँ से आप अपना सामान जो है वो अलग अलग जगहों पर पहुँचा सकते हो। सो दिस इज कंसोलिडेशन। द नेक्स्ट इज स्टॉक ब्रेक ब्रेक द द बल्क। बल्क। अगर आपको बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि आपके पास में जो सामान है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो यू कैन ब्रेक इट। आप क्या कर सकते हो, अलग अलग वेयर हाउसेस जो हैं
जैसे यहाँ पर हो गया आपका प्लांट ए हो गया, ब्रेक बल्क, आपने कस्टमर ए, कस्टमर बी और कस्टमर सी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग उसको डिवाइड कर सकते हो, उसको ब्रेक कर सकते हो, तो इट इज़ नॉट ओवरबर्डन। फिर आता है स्टॉक पाइलिंग। तो कई बार ऐसा हो रहा है कि जो बिजनेस है वहाँ पर रॉ मटेरियल्स भी हैं, राइट। अगर आप देखते हो तो रॉ मटेरियल्स जो हैं वो भी आपको करना है, विच आर नॉट रिक्वायर्ड इमिडिएटली। तो आप क्या कर रहे हो ऐसी कंडीशन में, आपके पास में अगर पाइलिंग ना हो, बहुत ज़्यादा आपके पास में इकट्ठा नहीं हो, आपने कहीं बाहर से उसको एक्सपोर्ट किया, सपोज आपने रॉ मटेरियल जो है वो बाहर से एक्सपोर्ट किया, सो यू कैन स्टोर इट इन अ वेयर हाउस। आप अपने वेयर हाउस में रख लीजिए और जैसे जैसे ज़रूरत है आपको वैसे वैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, विच इज़ अ सिंपल एग्जांपल ऑफ रॉ मटेरियल। कि जैसे रॉ मटेरियल है वो हमें एक साथ तो नहीं चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, तो वैन एवर वी आर रिक्वायर्ड इट वी कैन गेट इट। वैल्यू एडिड सर्विसेज, ये आपको और सर्विसेज जो हैं वो भी प्रोवाइड कराते हैं, केवल ये नहीं है कि इन्होंने आपको स्टोरेज की फैसिलिटी दे दी। इन्होंने आपको बताया कि कुछ और सर्विसेज हैं जो कि किसके द्वारा करवाई जाती हैं, वेयर हाउसेस के द्वारा कराई जाती हैं, जैसे कि ट्रांजिट, मिक्सिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। इस तरीके की सर्विसेज जो है वो भी ये आपको प्रोवाइड कराते हैं। देन प्राइस स्टेबलाइजेशन। प्राइस स्टेबलाइजेशन जो है इसमें है बाय एडजस्टिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स विद द डिमांड, the demand situation warehousing performs the function of stabilizing price, thus prices are controlled when supply is increasing in demand। आप देखते हो, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है कि किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है वो उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई के हिसाब से बढ़ती और घटती रहती है। तो सेम हियर वेयर हाउसेज जो होते हैं वो आपको क्या करते हैं, इसमें एक स्टेबिलिटी जो है वो लेकर के आते हैं, राइट। और इकोनॉमी को भी इफेक्ट करते हैं फिर इस तरीके से। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं कि controlled when supply is increasing and demand is stake and vice versa। किस तरीके से डिमांड बढ़ रही है या उसकी सप्लाई बढ़ रही है, ये क्या कर देते हैं, उसको मैनेज कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल। एक और इसका आ रहा है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में आप देखते हो कि जो वेयर हाउस हैं, वेयर हाउस में आपका जो भी माल है वो रखा हुआ है, तो इट इज़ कंसीडर्ड एज योर असेट, राइट। इट इज़ कंसीडर्ड एज योर असेट। तो इसके बिहाफ पर इसके जो बिल्स होते हैं या इनकी जो रिसिप्ट्स होती हैं, इनके बिहाफ पे आप फाइनेंस जो है वो भी क्या कर सकते हो, अपने लिए अवेलेबल करा सकते हो। जैसे कि अगर आपको किसी भी अपने गुड्स के ऊपर किसी भी तरीके का लोन अगर चाहिए, तो वो आप जो स्लिप्स हैं वो दिखा करके क्या कर सकते हैं, वहाँ से अपना पैसा जो है अपने लिए कोई भी फाइनेंसिंग जो है वो करा सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थॉट वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। Okay. फाइन। Thank you.